So hello all the aviators, those who are new to the channel. My name is Hariom Soni and I am a student pilot from India. And in today's video, we are going to talk about the hidden charges flying schools impose on their students once you have taken the admission. And of course, it's the dark reality of Indian flying schools. And no one actually talks about it because no one wants to get targeted by these big firms. I've been there, so I want you guys to be cautious about it. सिर्फ एविएशन के ग्लैमर को बाहर से देखकर इससे इम्प्रेस मत हो जाना. देयर इज अ लॉट गोइंग इनसाइड इट. बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी फ्लाइंग स्कूल्स नेम, बट समझदार के लिए इशारा काफी. ऑल्सो कुछ अच्छे फ्लाइंग स्कूल्स भी है, बट द सीन इज मेजॉरिटी ऑफ द फ्लाइंग स्कूल्स इन इंडिया ऐसा करते हैं. सो आई एम हियर टू मेक यू गाइज कॉशियस अबाउट इट. There are hell lot of hidden charges that the flying school will not tell you about unless you have enrolled in there. Even you will have to face a lot of politics once you have enrolled in there. So let's get started. So once the student has cleared all his papers, he is full enthusiastic to finally take an admission in a flying school and start his or her flying journey. And they just rush to join a flying school without inquiring much about it. And that's where they fell in the trap. So the first thing that you should keep in mind that flying schools are eventually a money making firm. And trust me when I say this, most of the flying schools are just money making firms. They only care about making money out of you and they don't care about students at all. Okay? I'm talking about some of the flying schools. So the first thing you will do after completing all your exams is ring a flying school up. आप उनसे पूछोगे कि सर हमारे सारे पेपर्स क्लियर हो गए एंड वी वांट टू टेक एडमिशन, तो हमारी फ्लाइंग ट्रेनिंग में कितना ड्यूरेशन लगेगा. एंड दे विल आंसर यू फॉर श्योर 6 months to an year, that's it. Which is completely wrong. It's a misleading information. They are just setting a trap for you. Actually उस फ्लाइंग स्कूल में कितना टाइम लग रहा है, आप फ्लाइंग स्कूल विजिट करो, वहाँ के बच्चों से पर्सनली बात करो, then you will get to know. In India nowadays it's taking a minimum of 1.5 years to 2 years. फ्लाइंग स्कूल्स चाहते हैं कि आप एडमिशन लो, तो वो आपको मिसलीडिंग फिगर्स बताएंगे like 6 months to 8 months to even 1 year. और जब आप एडमिशन लेने जाओगे तब तो मैनेजमेंट आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, आपको सर करके ट्रीट करेंगे. बट वंस यू हैव एनरोल्ड इन देयर, आपकी कोई नहीं सुनने वाला. आप बोलते रह जाओगे कि हमारी फ्लाइंग नहीं हो रही है, बट कोई नहीं सुनने वाला. एंड नाउ सपोज यू हैव टेकन द एडमिशन, इट्स योर फर्स्ट डे टू द फ्लाइंग स्कूल. आप पूरे जोश में होगी कि आज फाइनली वी विल गेट टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट. बट गेस व्हाट, it's not gonna happen. Not on the first day, not on the second day, not even on the 15 days. They will make you sit for documentation. वो बोलेंगे कि आपका SPL इशू करना है, जो कि SPL इशू में वो आपको टालते जाएंगे, वो जल्दी आपका SPL इशू करेंगे नहीं. They will make you sit for 10 days, 12 days, 15 days. Also, some of the flying schools आपको ब्रोशर में मेंशन भी नहीं करेंगे, but they will charge you for the issuance of SPL, that is Student Pilot License. And this is where the story of hidden costs starts. इसलिए आप एडमिशन लेने से पहले ही सब कुछ क्लियर कर लेना कि क्या हिडन चार्जेस है, क्या क्या एक्स्ट्रा पेमेंट्स हमें करनी होंगी जो कि हमारे ब्रोशर में मेंशन्ड नहीं है. बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर आपको बोलेंगे कि आपको इस चीज के लिए पे करना है, एंड गेस व्हाट, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फ्लाइंग स्टार्ट हो. And even if you get your SPL, उसके बाद भी they will make you sit for 7 days or 10 days depending on the availability. उसके बाद ही आपकी फ्लाइंग स्टार्ट करवाएंगे. Then same process will go for your FRTOL. जिन्हें नहीं पता उनको बता दो, FRTOL is necessary for your solo. जब आपको एक इंस्ट्रक्टर सोलो फ्लाई के लिए रिलीज करता है, तो उस टाइम पे आपके पास एक FRTOL लाइसेंस होना ज़रूरी होता है. इसके लिए इंस्ट्रक्टर से एक ओरल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं एंड दे विल आस्क यू टू पे फॉर दैट एज वेल, जिसके बारे में यूजुअली ब्रोशर में मेंशन नहीं करेंगे वो, बट दिस इज व्हाट दे मेक यू डू. और भी काफ़ी सारे फ्लाइंग चार्जेस है जो कि वो आपको इनिशियली मेंशन नहीं करेंगे. हिडन चार्जेस लाइक नाइट फ्लाइंग के एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेंगे, चेक फीस आपसे बहुत एक्स्ट्रा लेंगे, क्रॉस कंट्री लैंडिंग पार्किंग चार्जेस आपसे लेंगे, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जगह पे जहाँ पे आपसे वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके वो बोलेंगे यहाँ आपको पे करना, वहाँ पे आपको पे करना. एंड इवेंचुअली व्हेन यू विल कैलकुलेट, तो आपका बजट बहुत ओवरशूट हो चुका होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू गाइज हैव टू लुक अपॉन इज कि जब आप एडमिशन लेने जाओ तो आप फ्लाइंग स्कूल से पहले ये चीज़ क्लियर कर लो कि जो फ्लाइंग रेट्स पे अभी आपको पैकेज ऑफर हो रहा है, क्या वो फ्लाइंग रेट्स आपके थ्रू आउट CPL जर्नी सेम रहेंगे
या वो बीच में रिवाइज हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर फ्यू फ्लाइंग स्कूल्स विच प्लेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लाइक आई टेल यू अ सिनेरियो। वो क्या करते हैं, सपोज मार्केट रेट्स चल रहे हैं 23,000 रुपीज पर आवर के हिसाब से, तो वो सारे मार्केट में अपना रेट सबसे कम रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 21,000। बट जो फ्लाइंग स्कूल का रेट था 23,000, उन्होंने अपना एक अग्रीमेंट बनाकर रखा है कि अगर आप हमारे पास एनरोल होते हो तो आपके थ्रू आउट दी CPL 23,000 रुपीज फ्लाइंग रेट लगेंगे, चाहे आपका CPL फिर 1 साल में कंप्लीट हो, 2 साल में कंप्लीट हो या 5 साल में कंप्लीट हो। बट ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा फ्लाइंग स्कूल है, द टॉक्सिक फ्लाइंग स्कूल, वो आपको इस ट्रैप में फंसाएंगे कि हमारे रेट सबसे कम है, दैट इज 21,000, और एज अ स्टूडेंट आप वहां पे एडमिशन ले लोगे पैसे बचाने के लिए। बट eventually what will happen, in 4 months they will increase their rates, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं थे उनके, एंड दे विल नॉट टेल यू अबाउट इट टिल आपने एडमिशन ले रखा है। तो 4 मंथ्स में उन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए 21,000 से 23,000। अब आपकी फ्लाइंग भी नहीं हो रही है, आपने 4 महीने में कुछ खास फ्लाइंग भी नहीं की, दे हैव इंक्रीज्ड देयर रेट्स टू 23,000। अपकमिंग 6 to 8 मंथ्स में वो अपने 2,000 रेट्स और बढ़ा देंगे, दे विल मेक इट 25,000, 26,000 एंड सो ऑन। सो दिस इज द गैम्बल दे प्ले विद देयर स्टूडेंट्स। एंड अगर आप अपोज करने जाओगे, व्हाट आर द सॉल्यूशंस दे विल ऑफर? दे विल से कि आप अपनी पूरी एंटायर फ्लाइंग जर्नी अगर आपको उसी रेट्स पे चाहिए तो आप 200 घंटे के पैसे एक साथ दे दो, which is a very dumb decision. You will get stuck with that flying school. So now अगर ऐसे केस में you will think कि हम flying school छोड़कर किसी और flying school में शिफ्ट कर जाते हैं, तो ब्रदर इट्स नॉट दैट ईजी। आप जब उस फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेने जाएंगे तो दे विल मेक यू साइन फ्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ अग्रीमेंट्स होंगे और 5-10 पेज की वो बुकलेट होगी जिसे आप बहुत ध्यान से पढ़ना। वहाँ पे किसी एक पेज में दे मेंशन कि अगर आप हमारा इंस्टीट्यूट, हमारी फ्लाइंग एकेडमी इन बिटवीन छोड़कर जाते हो तो दी student is eligible to pay us some money that will cost you around 1 lakh to 1.5 lakh, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि अगर आप हमारा फ्लाइंग स्कूल बीच में छोड़कर जाते हो तो आपको बदले में हमें पैसे देने होंगे। दैट मेक्स नो सेंस एट ऑल। एंड अगर सपोज चलो मान लिया कोई स्टूडेंट रेडी है कि जो भी 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा वो फ्लाइंग स्कूल मांग रहा है, मैं उसको वो पैसे देकर कहीं और एडमिशन ले लेता हूँ। बट नाउ व्हाट विल हैपन? अब आपने वो फ्लाइंग स्कूल तो छोड़ दिया, अब अगर आप किसी और फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेने जाओगे, आप उनसे इंक्वायरी करोगे कि ऑलरेडी आप 20-30 घंटे कहीं आप फ्लाइंग कर चुके हो, अब आपको उनके फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना है, तो दे विल आस्क यू इवन मोर मनी। सपोज वहाँ पे कोई स्टूडेंट 0 आवर्स से एडमिशन लिया है तो उसके फ्लाइंग रेट्स चल रहे हैं 24,000 रुपीज़, तो आपसे दे विल चार्ज 25,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि उस फ्लाइंग स्कूल को पता है अगर आप पिछला फ्लाइंग स्कूल छोड़कर आ रहे हो तो यू आर स्टक, यू हैव नो वेयर टू गो, and for them you are just a money making machine, so they will ask you even higher rates। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में सारे फ्लाइंग स्कूल्स का ऐसा ही सीन है, कुछ बहुत अच्छे फ्लाइंग स्कूल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हैं, वो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, बट द थिंग इज द कॉस्ट इज सो हाई कि इतने में आप USA से फ्लाइंग करके आ जाओगे। बट अगेन ये बड़े बड़े फ्लाइंग स्कूल्स भी आपको सब कुछ नहीं बता रहे, दे आर स्टिल हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू गाइज। और अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, बट एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन टॉक अबाउट इट ऑन पार्ट 2। इफ़ यू गाइज वांट अ पार्ट 2 ऑफ हिडन चार्जेस एंड डार्क रियलिटी ऑफ फ्लाइंग स्कूल, पुट इट इन द कमेंट, हम और उस पर भी बात करेंगे। इनफैक्ट अगर स्टूडेंट्स कन्वर्जन के लिए बाहर से आ रहे हैं तो वो भी एक आजकल फ्लाइंग स्कूल दे आर गैम्बलिंग आउट ऑफ इट। इवन अगर आप अब्रॉड से ट्रेनिंग करके आ रहे हो तो फॉर कन्वर्जन फ्लाइंग स्कूल्स विल मेक यू क्राई। अगेन उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं। सो यार जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई होप आई हेल्प यू गाइज इन सम वे। If you have any more queries, you guys can DM me on Instagram and subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next one.